Hello students, welcome to all in Bishop Academy online classes. Dear student, in part 6 video, we have already studied about some theorems which is based on increasing and decreasing functions. Now student, in part 7 video, we will study about some important results which is a main factor of increasing and decreasing functions, and after then we will solve some question which is based on increasing and decreasing function. Now some important results, and first point is if a function f(x) is given and if we differentiate it and if function is f(x) and when f dash x is greater than or equal to 0 for all x belonging to the open interval AB, then f(x) is increasing on closed interval AB. And second point is if f dash x is greater than 0 for all x belonging to the open interval AB, then f(x) is strictly increasing on closed interval AB. And third point is if f dash x is less than or equal to 0 for all x belonging to the open interval AB, then f(x) is decreasing on closed interval AB. And fourth point is if f dash x is less than 0 for all x belonging to the open interval AB, then f(x) is strictly decreasing on closed interval AB. Now student, we will solve some questions, and questions are so that the function f given by f(x) equal to x cube minus 3x square plus 4x, where x belonging to the real number is strictly increasing on r. And next question is find the intervals in which the function f given by f(x) equal to x square minus 4x plus 6 is A strictly increasing and B strictly decreasing. And last question is find intervals in which the function given by f(x) equal to sin 3x, where x belonging to the closed interval 0 pi by 2 is A increasing and B decreasing. Now we will solve question number 1. And in question number 1, it is given f(x) is equal to x cube minus 3x square plus 4x, where x belonging to the real number. Now differentiate it with respect to x. We get f dash x is equal to differentiation of x cube is 3x square minus 3 differentiation of x square is 2x, means 3 into 2x plus differentiation of 4x is 4. This implies that f dash x equal to 3x square minus 6x plus 4. This implies that f dash x equal to 3x square minus 6x plus 4 can be written as 3 plus 1. This implies that f dash x equal to, in these three terms, 3 is common, then we add 3 in bracket, x square minus 2x plus 1 plus 1. This implies that f dash x equal to 3 into x square minus 2x plus 1 means x minus 1 whole square plus 1. If we put value of x is any real number, then it may be 0 or any positive term, and in first term 1 is added. मतलब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू रियल नंबर में से कुछ भी पुट करते हैं और उसमें से 1 माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, तो या तो वो वैल्यू
पॉजिटिव मिले, या यदि हम x की वैल्यू 1 लिखते हैं तो ये 0 मिले, लेकिन उसमें 1 ऐड है। तो आप जान रहे हैं कि जब इसमें 1 ऐड है तो कभी भी f डैश x की जो वैल्यू होगी वह 0 नहीं आएगी, जो वैल्यू होगी वह 0 से ग्रेटर आएगा। मींस ये जो पूरी वैल्यू होगी व्हेन x बिलोंगिंग टू द रियल नंबर, ये पूरी वैल्यू जो आएगा कभी 0 नहीं होगा, 0 से ग्रेटर होगा। मींस फ्रॉम above we can say that f dash x is greater than 0। और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोगों को बताए हैं कि जब f dash x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा तो हम कहेंगे जो फंक्शन होगा वह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन r। thus given function f x is strictly increasing on real number r, hence it is verified। Now student, in question number 2 and in question number 3, मतलब दूसरे क्वेश्चन में और थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये अलजेब्रिक टर्म है और यहाँ पर यह ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। दोनों टर्म के लिए हम लोगों को इंटरवल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में वह इंटरवल निकालना है जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वह इंटरवल निकालना है जिसके लिए गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, and in question number 2 it is given f x is equal to x square minus 4x plus 6। let this is equation number first, differentiating it with respect to x we get f dash x is equal to 2x minus 4 and differentiation of 6 is 0। यहां से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। यह बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम लोग अपनी सुविधा के लिए क्रिटिकल पॉइंट हम निकालते हैं। क्या लिखेंगे हम? फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स वी इक्वेट f dash x is equal to 0 means f dash x equal to 0, this implies that 2x minus 4 equal to 0, 2x is equal to 4, then x is equal to 2। यहां पर जो x equal to 2 है, अगर हम रियल लाइन ड्रा करें माइनस इनफाइनाइट या लिखेंगे हम प्लस इनफाइनाइट, this 2 is lies between the minus infinite to plus infinite, then we write 2। here we get two interval means minus infinite to 2 and 2 to infinite। अब आप यहां ध्यान दें माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 के बीच में कोई भी एक नंबर आप कंसीडर करिए, जैसा कि हमने लेमन से एक नंबर हम कंसीडर कर रहे हैं 1, और आप f dash x equal to 2x minus 4 में आप पुट करिए। अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 into 1 minus 4 मींस जो वैल्यू है f dash x की वह यहाँ पर निगेटिव आ रही है, और 2 से लेकर के इनफाइनाइट के लिए अगर आप वैल्यू पुट करते हैं इसमें हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ 3 रख रहे हैं, जब यहाँ 3 रखेंगे तो 2 into 3 मींस 6 minus 4, तब यहाँ हम देख रहे हैं जो f dash x है वह पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट 2 नहीं रखेंगे क्योंकि हमें वह इंटरवल निकालना है जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो हम 2 नहीं लेंगे। जब 2 न लेना हो, जब हम इंटरवल बनाते हैं तो 2 के साइड में हम ओपन कर देंगे, क्लोज नहीं करेंगे, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर यही इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहा जाए तो आप क्लोज इंटरवल का नोटेशन जरूर लगाएंगे, क्योंकि उसमें
हमें ये चेक करना रहता है कि f डैश x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग है, और f डैश x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 हो तो हम बोलेंगे डिक्रीजिंग है। तो यहां पर आप देखिए यह जो रीजन है इसमें अगर हम कोई भी वैल्यू f डैश x में रखते हैं तो यहां नेगेटिव आ रहा है, और इसमें अगर कोई भी वैल्यू इसका 2 से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में रखते हैं तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तब आप ये कहेंगे इस इंटरवल में मींस ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 2 में जो गिवन फंक्शन होगा यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस इंटरवल अगर आप लेते हैं तो यहां पर जो वैल्यू आ रहा है वह पॉजिटिव आ रहा है, तो आप कहेंगे यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। यह बात आप ध्यान देंगे। तो पॉसिबल देयरफॉर इंटरवल्स आर एक हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट कामा 2, और जो सेकेंड इंटरवल होगा वो 2 कामा इनफाइनाइट होगा। एक बात और मैं इसको समझा दे रहा हूं, एक बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कोई भी फंक्शन दिया हो सबसे पहले उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट आप निकालेंगे। कोई भी क्वेश्चन दिए हो उसको 0 की कोण करिए, वहां से पॉइंट निकालेंगे। और ये अलजेब्रिक टर्म है तो यहां पर माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक रियल लाइन को अगर हम ड्रा कर रहे हैं तो यहां पर 2 लाई कर रहा है, और हम यहां देख रहे हैं कि यहां 2 इंटरवल फाइंड आउट हो रहा है। 2 को कंसीडर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर यहां 2 रखते हैं तो f डैश 2 की जो वैल्यू होगी 0 होगी, और हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में अगर इंक्रीजिंग है तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो f डैश x इज लेस देन 0, इक्वल 0 नहीं होता है। तो यही रीजन है कि यहां पर और यहां पर हम ओपन इंटरवल लगाए हैं, क्लोज इंटरवल नहीं लगाए हैं। मतलब 2 को हमें कंसीडर नहीं करना है, 2 से इधर लेस होना चाहिए, इधर 2 से मोर होना चाहिए। और आप जानते हैं जब बाउंड्री का पॉइंट नहीं कंसीडर होता है उधर जो इंटरवल लगाते हैं वह ओपन होता है, जब बाउंड्री का पॉइंट कंसीडर होता है तब इंटरवल लगाते हैं तो वह क्लोज होता है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 तक, 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक है, तो हम कहेंगे माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 तक अगर हम इंटरवल फाइंड आउट करते हैं, इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू आप कंसीडर करिए। अगर हम 1 कंसीडर करते हैं तो आप देख रहे हैं ये नेगेटिव आ रहा है, तो हम कहेंगे कि यह जो फंक्शन होगा वह होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर आप 2 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर लेते हैं, 3, 4, 5 कुछ भी यहां लिखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू आएगा f डैश x का वह ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि जो फंक्शन होगा इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो आप यहां से क्या कंक्लूजन निकाले, 10 पॉसिबल intervals या intervals for strictly increasing function is 2 to infinite, open interval 2 to infinite, and for strictly decreasing is open interval minus infinite, comma 2. This is final answer. Now student, again we will solve question number 3, which is like question number 2, but question number 3 is based on trigonometric function. Now in question number 3 it is given f(x) is equal to sin 3x. Let this is equation number first. Then we find f dash x, and f dash x equal to differentiation of sin 3x means 3 cos 3x. फिर आप यहाँ लिखेंगे for finding critical points 3 cos 3x is equal to 0. This implies that cos 3x equal to 0. और क्लास 11th में फार्मूला लोगों को बताया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, इफ cos थीटा इक्वल टू 0
then theta equal to 2n plus 1 into pi by 2 where n belonging to the integer. This implies that cos 3x is equal to 2n plus 1 into pi by 2. Means 3x equal to cos 3x equal to 0, then 3x equal to 2n plus 1 into pi by 2. This implies that x equal to 2n plus 1 into pi by 6. अब यहाँ पर स्टूडेंट आप लोगों को ध्यान देना है कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है या लाई कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 to pi by 2 मींस निगेटिव वैल्यू यहाँ पर हम x का कंसीडर नहीं करेंगे। तो यही रीजन है कि यहाँ पर जो n लाई कर रहा है इंटीजर में, यहाँ नेगेटिव इंटीजर अगर हम लोग लेते हैं -1 -2 तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यू है n का, n की वैल्यू अगर हम 0 लिखते हैं तो यहाँ से आप लिखेंगे x is equal to when n equal to 0 then x equal to 2 into 0 plus 1 into pi by 2 pi by 6, 2 into 0 plus 1 into pi by 6 means यहाँ से जो x की वैल्यू आया वो pi by 6। and again if we consider n is equal to 1 then we get x is equal to 2 into 1 plus 1 into pi by 6, x is equal to 3 into pi by 6 means value of x is pi by 2 and also interval is given। तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि हमें x equal to pi by 2 को हम दिखाएं, केवल हम x की वैल्यू pi by 6 से ही शो करेंगे। इसके बाद फिर हमें रियल लाइन ड्रा करेंगे, लेकिन इस रियल लाइन में माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक शो नहीं करेंगे। आप यहाँ पर जो इंटरवल गिवन है आप देख रहे हैं 0 to pi by 2 है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए और इस साइड में यहाँ पर आप pi by 2 लिख दीजिए और pi by 6 जो वैल्यू आया है वह इसी के बीच में लाई करेगा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए pi by 6। अब आपको यह ध्यान रखना है कि 0 से लेकर के pi by 6 मींस 0 to 30 डिग्री अगर आप कोई भी वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं तो वहां से हम साइन देखेंगे या बेस x का, यह बेस x का साइन देखेंगे। अगर हम 0 से 30 के बीच में यदि हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर 50 डिग्री, तो आप यहाँ खुद देख रहे हैं कि अगर आप 50 डिग्री अगर यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं तो यह बेस x वाले में आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ 15 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 डिग्री होगा। और आप जानते हैं कि cos 45 की जो वैल्यू होगी वह प्लस 1/√2 होगा। इसका मतलब है कि 0 से लेके pi by 6 के बीच में जो भी वैल्यू मिलेगा उस पर अगर हम चेक करेंगे बेस x, इसका जो साइन होगा वह ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन अगर हम यही 0 पर कंसीडर करते हैं, आप जानते हैं जब 0 रखेंगे तो भी ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन अगर यही pi by 6 लेते हैं तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आप कंसीडर करते हैं इस वैल्यू पर यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है। इसलिए ये मस्ट है कि हम यह बेस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिखाएं या यह बेस x इज लेस देन और इक्वल टू 0 दिखाएं। तो जो ये pi by 6 है इसका जो बाउंड्री है ये कंसीडर होगा। यहाँ तक कि जो क्वेश्चन में गिवन है 0 से लेकर के pi by 2, 0 भी कंसीडर होगा, pi by 2 भी कंसीडर होगा। तो जब भी आप इंटरवल में डिवाइड करिएगा तो 0 के साइड में क्लोज लगाएंगे, तो pi by 2 के साइड में भी हम क्लोज का सिंबल लगाएंगे। तो यहाँ स्टूडेंट हमें 2 इंटरवल यहाँ फाइंड आउट हो गया। 0 to pi by 6 में वैल्यू इसका पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ हम लिख लेंगे। अब देखिए pi by 6 to pi by 2, इसमें अगर आप कंसीडर कर रहे हैं 30 डिग्री to 90 डिग्री, इसमें 45 डिग्री आएगा और 3 into 45 मींस cos 135 डिग्री। और जब cos 135 डिग्री की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे इसमें जो वैल्यू आएगा वह नेगेटिव है। मींस इस इंटरवल में जो गिवन फंक्शन होगा वह इंक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा।
अब यहां पर आप ध्यान दें, लिख देंगे देन इंटरवल्स आर, यहां स्ट्रिक्टली की चर्चा नहीं की गई है इसलिए हम क्लोज लगाएंगे। आर ये हो जाएगा 0, π/6 एंड क्लोज इंटरवल π/6, π/2। और इस इंटरवल में डेरिवेटिव का जो साइन है वह ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ रहा है, और इस इंटरवल के लिए लेस देन आर इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि thus given function f(x) is increasing on closed interval 0 π/6 and decreasing on closed interval π/6 to π/2. These are possible intervals for given function f(x). Hence, we find possible intervals. Now, dear student, some question is given in Google Classroom app. Thanks.